اب ہم قیامت کے روز کے خوفناک منظر کا سامنا کر رہے ہیں۔ دنیا کے خاتمے کے بعد ایک طویل انتظار کے بعد ایک زوردار آواز آتی ہے۔ اللہ رب العزت اسرافیل کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں اور انہیں ایک بار پھر سور پھونکنے کا حکم دیتے ہیں۔ پل صراط جب فیصلے ہو چکے ہیں، جہنم پر ایک پل رکھا گیا ہے جو جنت تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کی دونوں طرف کنڈے لٹک رہے ہیں، اور ان کا کام ہے ان لوگوں کو پکڑا جائے جن کا حکم دیا جائے۔ نہیں، براہ کرم میری مدد کریں، نہیں۔ خدا کے سامنے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دے گا۔ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کیا کرتے تھے۔ دنیا ختم ہو چکی ہے، ایک ایک کر کے ملک الموت سمیت تمام فرشتے مر چکے ہیں۔ اب وہ وقت ہے کہ جب سب کچھ حقیقی معنوں میں شروع ہوگا اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، اور اب دوبارہ زندہ ہو کر سب میدان حشر میں جمع ہو رہے ہوں گے۔ اول انسان سے لے کر ہر وہ شخص جو مر چکا ہے اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دنیا اب ویسی نہیں رہی جیسے ہم جانتے تھے، یہ ایک بالکل مختلف جگہ میں بدل چکی ہے، ایک ہموار میدان جس کا کوئی افق نہیں، اتنا بڑا جتنا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں ایک لمبا انتظار ہوگا اور ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے تمام اعمال میزان پر تولے جائیں گے، پھر پل صراط قائم کی جائے گی اور وہ سفر شروع ہوگا جس کا اختتام یا جہنم پر ہوگا یا پھر جنت پر۔ ایک کے بعد ایک ہم ان مراحل کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو حیرت ہو کہ مردوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا جب وہ گل سڑ کر زمین کے نیچے بکھر چکے ہیں، انہیں دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ اس آیت میں ہمارا رب اس بات کا ایک خوبصورت جواب دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار زندہ کیا تھا، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک کیا وہ خالق جسے ہم اس کے کاموں کے ذریعے سے جانتے ہیں، جو لامتناہی طاقت اور قوت رکھتا ہے اور ہر چیز کو کامل تربیت میں رکھتا ہے، ہمیں ہر موسم بہار میں دوبارہ زندگی کی مثالیں نہیں دکھاتا؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ زمین کے نیچے چھپے ہوئے بیجوں کو زندگی کیسے دی جاتی ہے اور وہ کئی رنگوں کے پھولوں میں آ کر کھل اٹھتے ہیں؟ آپ امیجن کریں ایک ایسے کمانڈر کے بارے میں جس کے پاس ایک وسیع اور طاقتور فوج ہے، پھر وہ ان سب کو جا کر آرام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمانڈر اپنے بکھرے ہوئے ساتھیوں کو ایک گھنٹی کی آواز میں اکٹھا نہیں کر سکتا؟ اسی طرح اللہ نے انسان کو مختلف عوامل کو اکٹھا کر کے پیدا کیا ہے۔ وہ ایک ماں کو پوری دنیا سے جمع کر کے کھانا فراہم کرتا ہے، اس کے ذریعے اس کے پیٹ میں بچے کو تخلیق کرتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ موت کے بعد جب ہمارے جسم بکھر جائیں گے تو وہ دوبارہ ہمیں جمع کر کے زندہ نہیں کر سکے گا؟ جیسا کہ قرآن مجید کہتا ہے، کیا ہمیں پہلی بار انسان کو پیدا کرنا مشکل تھا؟ لوگ وحشت اور خوف میں اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں، گویا کہ وہ گہری نیند سے بیدار ہوئے ہو۔ ننگے پاؤں وہ سب کسی ایک طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ کافر کہیں گے یہ ایک مشکل دن ہے، یہ ایک مشکل دن ہے۔ وہ مومن جو خدا کی نافرمانی سے دور رہتے ہیں فخر اور خوشی کے چہروں کے ساتھ چلے جائیں گے، یہ اپنی سواریوں پر سوار ہوں گے۔ لیکن وہ لوگ جو قرآن سے روگردانی کرتے تھے انہیں چہروں کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لایا جائے گا۔ کچھ چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے جبکہ دوسرے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے لگیں گے، لیکن اس وقت ہر کوئی اپنے ہی مسائل میں گم ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے کیونکہ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز ہوگی، اپنے گناہوں سے نجات پانا۔ مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے، اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو فدیے میں دے دے، اور اپنے اس خاندان کو بھی جو اسے پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو فدیے میں دے دے، بس کہیں خود کو بآسانی بچا لے۔ براہ کرم مجھے جانے دو، اگر چاہو تو میری بیوی کو لے جاؤ، اگر چاہو تو میرے دوستوں کو لے جاؤ۔ دنیا میں کوئی شخص جس کے ساتھ بھی دوستی رکھتا تھا اور جس کی وہ بات سنتا تھا، روز قیامت وہ ان کو تلاش کرے گا۔ اگر یہ دوستیاں برائی کی راہ پر تھی
जैसे ही वो उन्हें पाएगा उनके गिरेबान पकड़ लेगा। जब मैं जमीन पर था तो मैंने तुम्हारी पैरवी की, मैंने वो किया जो तुमने कहा। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? लेकिन वो पीछे मुड़कर देखे बगैर ही भागेंगे। वो अपने पैरोकारों को देखना भी नहीं चाहेंगे और उनके पैरोकार भी अफसोस करेंगे और पैरोकार कहेंगे कि काश हमें एक बार फिर दुनिया में लौटने का मौका दे दिया जाए, तो हम भी उनसे लातालुकी का ऐलान करेंगे जिस तरह उन्होंने हमारे साथ किया। आहिस्ता आहिस्ता कुछ नाम आपके जहन में भी आने लगते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आपको उस दिन सामना करना पड़ेगा। अगरचे आपको उनसे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन फरार की कोई राह नहीं। तमाम इंसानियत एक बड़ी कतार में खड़ी हुई होगी और अब ये इंतजार का वक्त है। लोग हैरान होंगे कि ये इंतजार कितना लंबा चलेगा, क्योंकि सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त होगी। उस दिन सूरज पहले से कहीं ज्यादा लोगों के करीब लाया जाएगा, जबकि वो दुनिया में 40 सेंटीग्रेड की धूप में भी खड़े नहीं हो सकते थे। लोगों को उस दिन सूरज के नीचे एक तवील अरसे तक इंतजार करना पड़ेगा। अपने गुनाहों के बोझ के मुताबिक हर कोई पसीने में डूबा हुआ होगा, लेकिन क्या बिल्कुल भी साया नहीं होगा? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खुशखबरी दे दी है उन लोगों को जिनको साया नसीब होगा। उन्होंने फरमाया कि उस दिन उसके साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। अल्लाह ताला इन लोगों को साया अता करेगा। एक आदिल हुक्मरान, एक नौजवान जो अल्लाह की इबादत में पला बढ़ा, एक वो शख्स जिसका दिल मस्जिदों से जुड़ा हुआ हो, वो दो शख्स जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हों और वो सिर्फ अल्लाह के लिए मिलते और जुदा होते हों, और एक ऐसा शख्स जो एक हसीन और जमील औरत की नाजायज ताल्लुकात की दावत को रद्द कर दे और कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, और एक ऐसा शख्स जो इतनी खामोशी से सदका दे कि उसके बाएं हाथ को भी पता न चले, और एक ऐसा शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाएं। और एक और हदीस में खुशखबरी यूं दी गई है कि जो शख्स किसी कर्जदार को जो तंगी में हो उसे मोहलत दे या तमाम या कुछ कर्ज माफ कर दे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपने अर्श के साये के नीचे जगह देगा। इंतजार बहुत तवील अरसे तक जारी रहेगा, लेकिन हिसाब शुरू नहीं होगा, यहाँ तक कि एक वक्त आएगा जब लोग इस सूरत हाल से निजात पाने के लिए किसी को बेताबी से तलाश करेंगे। सबसे पहले वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हज़रत नूह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। अगरचे वो सब भी अजीम अंबिया में से हैं, लेकिन हर एक नबी भी कहेगा नफसी नफसी, यहाँ तक कि आखिरकार हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा जाएगा और वो अल्लाह से दुआ करेंगे और हिसाब किताब शुरू होगा। लेकिन इसके बाद जो कुछ शुरू होगा वो पहले से ज़्यादा सख्त होगा। अजीम हिसाब से पहले हर कोई एक कितार में खड़ा होगा, फिर बाएं तरफ से खौफनाक गरज सुनाई देगी, हर कोई डर कर कांप उठेगा। जहन्नम की आग अपने तमाम गुस्से और ताकत से जाहिर होगी। वो बेसब्री से दहक रही होगी, क्योंकि उसके सामने वो लोग खड़े होंगे जिन्होंने बेशुमार जुल्म और सितम किए थे और खौफनाक गुनाह किए थे, जिन्होंने अल्लाह और उसके नबी को झुठलाया, जिन्होंने ईमान वालों का मजाक उड़ाया और जिन्होंने सैकड़ों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया। खौफजदा होकर वो सिर्फ बेबसी से घूर ही सकेंगे और दाएं तरफ जन्नत अपनी तमाम शान शौकत और खूबसूरती के साथ जाहिर हो जाएगी। वो लोग जो दुनिया में अल्लाह पर ईमान लाए और उसके नबी की बात को माना, उनके चेहरों से खुशी और मुसर्रत छलक रही हो और वो बड़े इत्मीनान और खुश नजर आ रहे होंगे। हिसाब से पहले रास्ते में आपको एक चौंका देने वाला मंजर नजर आता है। दुनिया में किसी एक भेड़ ने दूसरे भेड़ को सींग मारा था, जिससे उस भेड़ का बच्चा जाया हो गया था। उस दिन इन दोनों भेड़ों को अपने सामने लाया जाएगा किसास के लिए, और दूसरी भेड़ के साथ वैसा ही किया जाएगा जो उसने दुनिया में किया था। उस लम्हे आपको हकीकी माने में एहसास होगा कि यहाँ पर छोटे से छोटी चीज भी सामने लाई जाएगी। उन चीज़ों का भी हिसाब किया जाएगा जिन हमें गैर अहम समझते थे। कोई जर्रा बराबर भी नेकी होगी तो इंसान उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर भी बुराई की होगी वो उसे भी देख लेगा। हर एक को उसका नामा अमाल दिया जाएगा। पहले जन्नत उसे दाएं हाथ से हासिल करेंगे, जबकि अहले जहन्नम उसे बाएं से हासिल करेंगे। जिन्हें नामा अमाल बाएं हाथ में थमाया जाएगा, जब वो उसे पढ़ेंगे तो वो अफसोस करेंगे, डरेंगे, खौफजदा हो रहे होंगे और कहेंगे हाय अफसोस, ये कैसा रिकॉर्ड पेश किया जा रहा है कि इसने किसी छोटे या बड़े अमल किसी को भी नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं हर वो अमल जो उन्होंने किया था उनके सामने रख दिया जाएगा। आपका रब किसी पर जुल्म नहीं करता। हाय अफसोस हम पर, ये कैसा रिकॉर्ड है, इसने छोटे या बड़े किसी अमल को भी बगैर हिसाब के नहीं छोड़ा। काश मैंने कभी शैतान की पैरवी ना की होती। प्लीज मैं माफी चाहता हूँ, मुझे एक और मौका दे दें। काश
मैंने अपने नफ्स की पैरवी ना की होती। काश मैं मट्टी हो गया होता। जहाँ तक अहले जन्नत का ताल्लुक है, जब उन्हें उनके नामे आमाल दिए जाएंगे, कुरान उसको यूँ कहता है कि जब किसी को उसके आमाल दाएं हाथ में दिए जाएंगे, वो कहेंगे ये लो मेरी किताब, इसे पढ़ लो। ये लो मेरी किताब, इसे पढ़ो। मैं जानता था कि हिसाब का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह वो एक खुशगवार जिंदगी में होगा। इतने खौफनाक दिन के होते हुए क्या हमें इस खुशी और आराम को हासिल करने के लिए हराम कामों से दूर नहीं रहना चाहिए? तमाम तर दहशत के बावजूद उस दिन जिस शख्स से जो सवाल किया जाएगा वो सीधा सा है। जो जिंदगी गुजार कर आए हो वो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। वो हराम कामों से दूर रह कर गुजारी या नहीं। बहरहाल जो भी अपनी जिंदगी हराम कामों में गुजारता है वो हकीकी खुशी का जायका नहीं चख सकता। अल्लाह ताला काफिरों से पूछेगा कि तुम कितने साल जमीन पर रहे, तो वो कहेंगे कि हम एक दिन या दिन का एक हिस्सा रहे हैं। अल्लाह फरमाएगा तुम बहुत ही कम रहे हो, काश तुम ये जानते होते। कि वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी खरीदी, तो उनसे ना ही तो अजाब को हल्का किया जाएगा और न ही उनकी मदद की जाएगी। और अब वो जिन्होंने ईमान लाने से इनकार किया वो काफिर हैं, वो अनकरीब जहन्नम में डाले जाएंगे, उसमें हमेशा रहेंगे, कभी भी नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन शायद इससे भी बदतरीन ये है कि वो अपने रब को कभी भी देख नहीं पाएंगे कि जिसने उन्हें पैदा किया। अब सिर्फ एक मरहला बाकी है, पुल सिरात जो जहन्नम के ऊपर बनाया गया है और जन्नत की तरफ जाता है। मुत्तकी, मोमिन, गुनहगार, काफिर, अल्लाह का इनकार करने वाला, अल्लाह को मानने वाला, हर कोई इस पुल पर आएगा। जन्नत तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस पुल को पार करने वाले पहले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत होगी। हर कोई अपने अमाल के मुताबिक इस पुल को उबूर करेगा। कुछ बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ हवा की तरह, कुछ तो चल भी नहीं सकेंगे, रेंग कर पार करने की कोशिश करेंगे। पुल सिरात के दोनों अतराफ में कुंडे लटक रहे होंगे जिनसे कुछ लोगों को पकड़ने का हुक्म दिया जाएगा। कुछ उन कुंडों से जख्मी होंगे और खराश ज़दा होकर बच निकलेंगे, जबकि कुछ पकड़ लिए जाएंगे और जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे। नहीं, बराह करम मेरी मदद करें। नहीं। जहन्नम कभी भी मुतमईन नहीं होती। जब भी उससे पूछा जाता है कि क्या तुम भर गई हो, तो वो चिल्लाती है हल मिन मजीद, क्या कोई और है? इसकी सारी हौलनाकी के साथ जहन्नम हमारे कदमों के नीचे है, हमारी आंखों के सामने भड़क रही है। हम कोशिश करते हैं कि इसे न देखें और पुल पर चलते रहें, पर हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं। उनमें से कुछ अपने गुनाहों पर अफसोस कर रहे हैं, कुछ जहन्नम में गिर रहे हैं, और वहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दुनिया में अपनी आखिरत को याद रखा। वो बगैर किसी तकलीफ के इस पुल को तेजी से पार कर लेते हैं। नेक लोगों को जहन्नम दिखाने का मकसद उन्हें डराना नहीं है, बल्कि उनकी खुशी को और भी ज्यादा बढ़ाना है। उन्हें दिखाया जाता है कि खौफनाक जगह से उन्हें बचा लिया गया है। वो एक लम्हे में गुजर जाते हैं, उनकी तड़प बिलाखिर खत्म हो जाती है, वो अपने अबदी घर तक पहुंच जाते हैं, यानी जन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अहले ईमान के लिए दुआ कर रहे हैं। उस दिन हमारी मुश्किल ये है कि हमारा हिसाब हो रहा है, लेकिन उनकी मुश्किल अपनी उम्मत को इस हालत में देखना है, उन लोगों को देखना है जिन्हें उनके नामा अमाल बाएं हाथ में दिए जाएंगे। पुल सिरात में उनकी हालत और उनका एक एक करके जहन्नम में गिरना। दूसरी तरफ उन्हें तसल्ली होगी उन लोगों को देखकर जो जन्नत के दरवाजों तक पहुंचने में कामयाब रहे। आखिरकार जहन्नम ने उन लोगों को ले लिया जो उसके मुस्तहिक थे, और अब वक्त आ गया है कि जन्नत अपने लोगों का इस्तिकबाल करे। जो लोग अपने रब से डरते थे उन्हें जन्नत की तरफ ग्रोहों की शक्ल में ले जाया जाएगा। जब वो करीब पहुंचेंगे तो उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जा चुके होंगे और जन्नत के मुहाफिज उनसे कहेंगे सलाम हो आप लोगों पर, आप लोग अब इस जन्नत में हमेशा हमेशा रहने के लिए आ जाएं। इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे, और जब होंगे तो इस पूरे सफ़र के इख्तिताम पर हम जिस जगह पर पहुंचेंगे वो इतनी खूबसूरत है कि हमारे परवरदिगार ने उसके बारे में ये अल्फाज कहे हैं, जन्नत ऐसी है कि जिसे न किसी आँख ने कभी देखा है, न किसी कान ने उसे सुना है, और न किसी इंसान ने कभी उसका तसव्वुर किया है। और अब अब्दी खुशी की सरजमीन में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ हम हमेशा रहेंगे और हर किस्म की खुशियों से लुत्फ अंदोज होंगे। और सबसे बढ़कर हमें सबसे बड़ी नेमत हासिल होगी, अल्लाह का दीदार। अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो आप इसे अब दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि अगली किस्त में हम बताएंगे कि जन्नत कैसी है, क्या नेमतें हमारा वहाँ पर इंतजार कर रही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।